Good morning, dear students. In our chapter light that we had discussed reflection by both type of spherical mirrors, concave as well as convex, and we had seen in previous lecture that the image formation by spherical mirror, if we have to calculate the exact location for that and magnification, so for that we had used mirror formula which is according to mirror formula 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u, whereas magnification by spherical mirror or magnification by mirror is given as m equals to height of image, ratio of height of image to height of object equals to minus v by u. Okay, minus v by u. Till here we had discussed. Today I am going to discuss with you plane mirror, which we use in our day by day life. So plane mirror. We all know the image formation by a plane mirror. Suppose this is a plane mirror, so this one is the reflecting side. We have to put our object, suppose at this particular location. Suppose this is the distance is u. Distance of plane mirror is u. Okay, now we have to locate image formed by this particular mirror, plane mirror of an object. Suppose this is the object. Okay. Now, by using mirror formula, we know image will form behind the mirror, and the image nature of image will be imaginary. Let's see how image will form and where image will form from the distance of mirror. Okay, so by using for the calculation for that, by using mirror formula, we say 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u. Is this visible? Okay, so 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u. We know plane mirror is a straight mirror. It means we can say focal radius of curvature of plane mirror for plane mirror is infinity. So r equals to f equals to r by 2. It means infinity divided by 2, we will get infinity. It means focal length of a plane mirror is infinity. By putting the value of f is infinity in this particular formula. So 1 by infinity equals to 1 by v plus 1 by u. And we know 1 divided by infinity. Infinity is a large number as compared to 1. So we will get 1 by infinity, it means 0. So 0 equals to 1 by v plus 1 by u, and from here 1 by v equals to minus 1 by u, and by if I am going to reciprocal of both sides, then we will get v equals to minus u. It means if we see, suppose this is the pole P of this particular mirror, then if we are going to move our distance, measure the distance u toward this side, so v will be opposite to u. See, we are getting v equals to minus u or u equals to minus v. It means the value of image, distance of image is opposite direction and equal to u. It means the image will form in the behind the mirror at the same distance. See, अगर u को मेजर करने के लिए मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, तो v को मेजर करने के लिए मुझे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि v जो है बेटा वो u है, बट मैग्नीट्यूड u के बराबर बट नेगेटिव है, और नेगेटिव साइन क्या देता है बेटा, यहाँ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव साइन क्या देता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज करके ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका इमेज जो बनेगा बेटा वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, और कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। अच्छा, तो ये तो बात सही हुई कि सपोज करके ये ब्लैक बोर्ड मेरा मिरर है, तो मैं मिरर के जितने पास जाता हूं, आप सब लोग मिरर यूज करते हैं, तो आप मिरर के जितने पास जाओगे तो इमेज भी उतना ही पास आएगी। आप मिरर से दूर जाओगे तो आपका इमेज भी मिरर के पीछे, आपको ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे हमारा जो इमेज है वो भी दूर जा रहा है ना, तो आपको v इक्वल्स टू u मिल गया। अच्छा, बात करते हैं सर मैग्निफिकेशन की, बात करते हैं मैग्निफिकेशन बाय प्लेन मिरर, है ना। सो प्लेन मिरर के लिए मैग्निफिकेशन की बात करें तो सर बेटा वो होता है HI/HO, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट
ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। अच्छा मैं बात करूं v का वैल्यू पुट करते हैं, हियर वी आर, इफ वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ v, सो वी विल गेट m इक्वल्स टू v का वैल्यू बेटा है माइनस u, तो माइनस u बाई u। सी v का वैल्यू माइनस u बेटा मैं यहां से ये वाला वैल्यू मैं यहां पुट कर रहा हूं v की जगह, तो v की जगह पुट करने पे मुझे मिला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और u से u कैंसिल आउट हो गया, तो m वी विल गेट द वैल्यू ऑफ m इज प्लस 1, इज प्लस 1। इट मींस m मैग्निफिकेशन इज 1, इट मींस आई टोल्ड यू अर्लियर दैट इफ वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ m इज 1, इट मींस द हाइट ऑफ इमेज, इट मींस hi इज इक्वल्स टू ho। मतलब आपका जो मैग्निफिकेशन होगा बेटा प्लेन मिरर का वो हाइट सेम देगा, इट मींस आपका जितना ऑब्जेक्ट है उतना ही क्या होगा, इमेज होगा। ऐसा नहीं कि आप ऑब्जेक्ट के सामने खड़े हो रहे हो, प्लेन मिरर के सामने आपका ऑब्जेक्ट है, सपोज आप ही ऑब्जेक्ट हो और आप अपना फेस देख रहे हो, तो ऐसा नहीं होगा कि वो आपको एनलार्ज कर देगा या फिर आपके फेस को डिमिनिश कर देगा। इट मींस प्लेन मिरर का जो ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन +1 होता है, इसका मतलब ये होता है कि हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सी इमेज जो है बेटा वो पीछे बन रहा है, मतलब कैसा बनेगा, इमेजिनरी इमेज बनेगा, कैसा बनेगा, सेम साइज बनेगा, कैसा बनेगा, बिहाइंड मिरर सेम साइज, वर्चुअल, कैसा बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है ना, सेम साइज का है, बिहाइंड द मिरर है, वर्चुअल है। और अच्छा बात करते हैं सर आपका मैग्निफिकेशन 1 जो आया वो क्या दिया है, hi/ho, बट सर +1 का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैग्निफिकेशन प्लस या -1 आता है तो इसका मतलब ये दोनों ये होता है कि बेटा hi/ho जो है वो या hi इक्वल्स टू ho है ना। बट अगर मैं बात करूं कि सर +1 आया तो +1 मैं आपको बोला था कि m के वैल्यूज या तो प्लस हो सकता है या माइनस, अगर प्लस होगा तो बेटा इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, प्लस होगा तो इमेज कैसा होगा, इरेक्ट होगा, और माइनस होगा तो इन्वर्टेड होगा, माइनस होगा तो इन्वर्टेड होगा। We all know that image formed by a plane mirror is always erect। ऐसा नहीं होता कि हम लोग प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं तो हमारा जो हेड है वो डाउन हो जाएगा और लेग अप साइड हो जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। तो इमेज कैसा होता है बेटा आपका, इरेक्ट इमेज होता है। कैसा इमेज होता है, इरेक्ट इमेज होता है। कई बार आप so many more times you will ask to if the plane magnification by a plane mirror is +1, so what do you mean, magnification by a plane mirror is +1, what do you mean by it। और पूछ सकता है what is the magnification produced by a plane mirror, we know magnification produced by a plane mirror is +1, here plus stands for the image which is formed by plane mirror is erect, and the height of +1, the magnitude of magnification represents hi equals to ho। Okay, so this is the basic concepts of plane mirror। So the reflection is over according to your syllabus. Right now we are going to discuss the next part of this particular chapter, which is refraction, you know, this is the second phenomena of light, so refraction, again the next phenomena is reflection. We had discussed the reflection, okay, so the next phenomena, refraction. See, next phenomena, refraction. See, what do you mean by refraction? What do you mean by refraction, or define refraction? We know when a light ray, refraction of light is defined as when a light ray travels from one media to another media, when a light ray travels from one media to another media with or without bending, that phenomena of light is known as refraction। See, अगर आपका कोई बेटा ये मीडिया 1 है, सपोज मीडिया 1 एयर बोल सकता हूं, अच्छा ये मीडिया 2 जो है बेटा आपका वो सपोज करके कौन है, वाटर है, कौन है, वाटर है। सो बोथ मीडियाज आर डिफरेंट ना, द मीडिया 1 इज एयर एंड द मीडिया 2 इज वाटर। सी व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर मीडिया, आपका जो लाइट रे है वो पहले मीडिया से दूसरे मीडिया में जो एंटर करता है, तो जो इनकी मीडिया को सेपरेट करने वाली बाउंड्री होती है वहां से वो आपकी जो रे है वो इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे से डेविएट हो जाती है, मतलब विद और विदाउट बेंडिंग, मतलब आपके पास क्या केस हुए कि या तो ये लाइट रे जो है विदाउट बेंडिंग पास हो जाए, या बैंड हो तो बैंड आइदर डायरेक्शन में हो सकता है, अवे फ्रॉम नॉर्मल और टुवर्ड्स नॉर्मल, सो देयर आर 3 possible conditions for an incident ray when it travels from one media to another media।
See, again I am going to repeat the definition of refraction. When a light ray travels from one media to another media with or without bending, that phenomena of light is known as refraction. That phenomena of light known as refraction. But in following two cases, light ray passes without bending. See, according to the definition of refraction, when light ray travels from one media to another with or without bending, see बेटा आपकी लाइट रे जो है वो बेंड हो भी सकती है और ना भी हो, लेकिन जब ये एक मीडिया से दूसरी मीडिया में पास होती है तो उस फिनोमिना को बुलाया जाता है रिफ्रैक्शन। अच्छा सर, कौन कौन से दो केस है जिनमें लाइट रे बिना बेंडिंग के पास होती है? तो बेटा उसके लिए दो केसेस है, देयर आर टू केसेस। द वेरी फर्स्ट केस इज नॉर्मल इंसिडेंस। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब आपका जो लाइट रे है बेटा वो कुछ ऐसा हो जाए कि आपका जो लाइट रे है उसका इंसिडेंस हो रहा है कि सपोज करिए मीडिया 1 से मीडिया 2 में हो रहा है। ये मीडिया 1 है और ये मीडिया 2 है ना। मीडिया को मीडियम भी बोल सकते हैं बेटा। सो मीडिया 1 से मीडिया 2 में अगर बेटा आपको समझाया कि नॉर्मल क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। किसी पॉइंट पे किसी सरफेस के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो तो उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो अगर अपना इंसिडेंट रे जो है वो नॉर्मल से आया, इंसिडेंट रे कहां से आया? नॉर्मल से, तो ये नॉर्मल से ही पास करता है। नॉर्मल से आया तो ये जिस डायरेक्शन में, इनिशियल डायरेक्शन में आया उसी से पास कर जाएगा। मतलब यहाँ कोई बैंड नहीं हुआ, है ना, तो विदाउट बैंड पास हुआ। कैसा हुआ? विदाउट बेंडिंग। ठीक है, तो पहला केस, द वेरी फर्स्ट केस इन विच लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर विदाउट बेंडिंग, विच इज नॉर्मल इंसिडेंस। अच्छा, द सेकंड फिनोमिना इन विच लाइट रे पासेस फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर विदाउट बेंडिंग, विच इज इफ बोथ मीडिया हैविंग सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी केस सेकंड की बात करते हैं कि जब आपका लाइट रे जो है वो बिना बेंडिंग के पास हो जाए तो उसका सेकंड केस है बेटा, इफ बोथ मीडिया have same refractive index, See, we will discuss later on what is the meaning of refractive index and all. Okay. If both media have same refractive index, it means आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि आपका लाइट रे जो है वो एक मीडिया से दूसरी मीडिया में जा रहा है और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, तो ये जिस लाइन से आ रहा था उसी लाइन के अलोंग क्या हो जाएगा बेटा? चला जाएगा, है ना। सेम मतलब विदाउट बेंडिंग ये आपका पास हो जाएगा, है ना। ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट लाइट रे, और ये क्या बेटा? रिफ्रैक्टेड रे है, refracted light ray. So in these following two cases, light ray travels from one media to another without bending. In remaining all cases light ray will bend. Okay, so these are the most important thing you have to remind, that there are two cases in which light ray passes from one media to another media without bending. The very first is normal incidence and the other is if both media having same refractive index. So now we have to discuss laws of refraction. Laws of refraction. See, similar to as reflection, there are also in refraction also two laws. The very first law, incident ray, normal and refracted ray. Incident ray, normal and refracted ray lie in a same plane. Suppose I am going to consider this one band. So this is incident light ray. See, this is the direction of initial incident ray. Direction of initial incident light ray. This one is a refracted light ray. This is suppose media 1,
1, and suppose the refractive index of media which is denoted by n, so I'm going to consider this one is n1 and this is suppose media 2 and the refractive index of this particular media is n2. Okay, this is normal, this is, and this is the separation of media 1 and 2, separating surface of both media. Okay, so whenever you are going to explain a refraction or laws of refraction, you have to draw a ray diagram like this. This is an initial incident light ray, this is the direction of initial incident ray, this is normal, सेपरेटिंग सरफेस ऑफ बोथ मीडिया. सी यहाँ से ऊपर मीडिया 1 है, यहाँ से नीचे एक मीडिया 2 है, तो एक तो सरफेस होगा जहां दोनों मीडिया क्या हो रहे बेटा, सेपरेट हो रहे हैं. दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टेड लाइट रे. सी लाइट रे माइट बी बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. ओके, so according to laws of refraction, the very first law is similar to reflection. Initial see incident ray, normal and refracted ray lie on a same plane. See incident ray comma normal and refracted ray lays on a same plane, is on same plane. मतलब बेटा आपके जो तीनों रे हैं, इंसिडेंट, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड, तीनों जो है बेटा एक ही प्लेन में होते हैं. तीनों क्या होते हैं, एक ही प्लेन में होते हैं. अच्छा सर, सेकंड वाला जो है, सेकंड वाला वो रूल ये बोलता है कि द रेशियो ऑफ, सपोज करके ये वाला जो एंगल है बेटा वो नहीं, नॉर्मल से अपने को इनिशियल जो इंसिडेंट रे है उसको सपोज करके मैं आई सपोज कंसीडर करता हूं, तो जो रिफ्रैक्टेड एंगल का जो होगा उसको मैंने आर कंसीडर किया सपोज, है ना. सो हियर एंगल आई इज इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस रे, एंड एंगल आर इज रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आल्सो. ओके, सी दो सेकंड वाला जो रूल ये बोलता है कि बेटा साइन आई बाई साइन आर इज अ कांस्टेंट and that constant always equals to relative refractive index of both media. It means n2 by n1. अब आपको सर आप बोलोगे सर ये तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, सेकंड रूल जो लॉ है उसका, तो लॉ है क्या, तो उसका बेटा आपको कैसे लिखना है थियोरेटिकली. The first is incident ray, normal and refracted ray lays on a same plane. The another law of refraction is defined as the ratio of sine of sine of angle of incidence to sine of angle of refraction. Sine of angle of refraction is a constant, and that constant is always equals to relative refractive index of media. This law is also known as Snell's law. स्नेल का लॉ ये बोलता है बेटा कि सपोज कि मेरी जो इंसिडेंट रे है उसका एंगल आई है, रिफ्रैक्टेड रे का एंगल जो है वो आर है, और साइन बेटा एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. साइन क्या है बेटा, sin, साइन जो है वो एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है. देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन, cos, tan, cosec, cosec. आउट ऑफ दिस द वेरी फर्स्ट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इज साइन. ओके, तो साइन आई बाई साइन आर जो है, या साइन आई और साइन आर का रेशियो जो है वो क्या है बेटा, एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट क्या है, दोनों मीडिया के रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है. रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड टू 1. अगर मैं बोलूं कि सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के रेस्पेक्ट में क्या है, तो आप बोलोगे n2 by n1. और मैं बात करूं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, सो आप बोलोगे n2 by n1. तो यहां क्या सोचना है बेटा आपका, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 1 के रेस्पेक्ट में. सो दिस इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. तो आप बोलोगे द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट ऑलवेज इक्वल्स टू रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडिया. दिस लॉ इज आल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ.
स्नेल्स लॉ। अच्छा बात करते हैं बेटा कि सर आपने बोला कि स्नेल्स लॉ ठीक है, अब हमें क्या पता चले कि कौन से मीडिया से, सपोज करके मीडिया 1 से ही मीडिया 2 में मेरा जो रे है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी कि टुवर्ड्स नॉर्मल होगी, है ना। तो हम थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई कर लेते हैं, हम 2 केस बना लेते हैं। हम क्या बना लेते हैं बेटा, केसेस बना लेते हैं। कैसे, सपोज करके सर हमारा मीडिया जो है वो एयर है, वाटर है, ग्लास है, केरोसिन है, कुछ और भी मीडिया हो सकता है ना। तो हम जनरली जो पढ़ते हैं या आपके जो जनरली सिलेबस में कंसीडर किए जाते हैं, देयर आर 3 मीडियाज। द वेरी फर्स्ट इज एयर, अनदर वन इज वाटर एंड थर्ड वन इज ग्लास। Okay, the standard refractive index of all these media is air is almost about 1.0003. So almost equals to we have to consider almost 1. The refractive index of water is 1.33, and the refractive index of glass is 1.5. You have to learn all these the data of refractive index for air, water and glass. अच्छा सर हम थोड़ा सा बात करें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या। तो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n। Okay, refractive index of any media is defined as the speed of light. It is defined as the ratio of speed of light in vacuum. Speed of light in vacuum to speed of light in that particular media. Speed of light in medium. सी n जो है बेटा एक्चुअल में होता क्या है कि आपको सर थोड़ा सा वेव्स में अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो ऐसा बोला जाता है बेटा, मान लो कि ये कौन है, वैक्यूम है, ठीक है। यहां से लाइट रे जो आई ऐसे आई सपोज, और वो ऐसे चली गई, कहां चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हो गया। अच्छा सर रिफ्रैक्शन हुआ तो आपको बोला जाता है कि बेटा ये लाइट जो है वो कैसा है बेटा, अगर मैं बात करूं तो यहाँ हम कैसा कंसीडर कर रहे हैं, लाइट को हम कंसीडर कर रहे हैं वेव की तरह। किसकी तरह कंसीडर कर रहे हैं, वेव की तरह। अच्छा आप बोलोगे सर वेव तो ऐसा होता है, वेव कैसा होता है बेटा, वेव तो ऐसा होता है ना। बट अगर वेव की बात करूं तो बेटा इसका एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत शॉर्ट होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, बहुत शॉर्ट होता है। तो हम उसको कैसा कंसीडर कर लेते हैं, हम उसको कंसीडर कर लेते हैं रे की तरह। कैसा कंसीडर कर लेते हैं, रे की तरह। अच्छा सर वेव में या रे में हमने जब वेव के प्रॉपर्टीज पढ़े तो वेव जो है वो कंस्टेन करती है किसके लिए, बात करें तो बेटा आपका इसमें जो होता है एक तो फ्रीक्वेंसी होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एक वेव वेलोसिटी होता है ना, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो। एक उसका वेवलेंथ होता है, क्या होता है, वेवलेंथ, ठीक है। अगर मैं बात करूं ये 3 कॉमन चीजें हैं जो वेव से एसोसिएट है, अगर आपने 9th में पढ़ा हो तो जब बोला जाता है व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर देन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस, वेयर एज वेलोसिटी एज वेल एज वेवलेंथ चेंजेस, ठीक है। तो अगर आपसे बात की जाए कि सर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है, मतलब वेलोसिटी और वेवलेंथ चेंज हो रही है, मतलब वेलोसिटी बोले तो स्पीड, अगर सर उसकी स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी तो चेंज हो रही है। सो अगर सर उसकी स्पीड चेंज हो रही है तो वो किस पे डिपेंड करती है, मीडिया पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन मीडिया, ठीक है। हम जब 9th में थोड़ा बहुत स्टैंडर्ड वेव के बारे में पढ़ा होगा तो आपसे बोला गया होगा कि वेव जो है वो एसोसिएट करती है एनर्जी को, एक्चुअल में एनर्जी को ही वेव बोला गया है। लेकिन अगर उस वेव के बारे में हम पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, वेलोसिटी होती है, टाइम पीरियड होता है, वेवलेंथ होता है ना, काफी चीज होती है। बात करता हूं कि सर फ्रीक्वेंसी जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगी। इट मींस व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडिया टू अनदर देन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस वेयर एज वेलोसिटी और स्पीड और वेवलेंथ चेंजेस। ओके, सो बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर कांसेप्ट it will help us to understand refractive index. Okay, तो refractive index को बेटा आपसे ऐसा बोला गया कि आपकी जो लाइट रे है वो एक मीडिया से दूसरी मीडिया में जा रही है, कहां से, वैक्यूम। और वैक्यूम को जनरली हम एयर भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, एयर भी बोल देते हैं, क्योंकि एयर को हमने जनरली किसकी तरह कंसीडर किया है, वैक्यूम की तरह। सो n इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड ऑफ लाइट इज ए स्टैंडर्ड डेटा। स्पीड ऑफ लाइट को बेटा c से डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल C से। और अगर मैं बात
बात करूं कि स्पीड ऑफ लाइट इन पर्टिकुलर मीडिया, सो मैं इसको बोल सकता हूं v से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c है, और c का एक स्टैंडर्ड डेटा आता है। c जो होता है बेटा, अगर आप थोड़े से 11th 12th में आओगे तो आपको पढ़ाया जाता है, c का वैल्यू जो होता है बेटा 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, म्यू नॉट का वैल्यू होता है बेटा 4 pi into 10 raised to power 4 pi into 10 raised to power -7, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 into 10 raised to power -12। अगर मैं उन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आता है वो आता है 3 into 10 raised to power 8। ऑलमोस्ट इसका जो आंसर आएगा बेटा वो आता है 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड। जो स्टैंडर्ड डेटा, ये क्या है? स्टैंडर्ड डेटा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ओके, सो ये c का वैल्यू तो आ गया। अच्छा सर, बात करें तो इसके यूनिट की बात करते हैं, तो c का वैल्यू बेटा स्पीड है मीटर पर सेकंड में, v भी स्पीड है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? यूनिट लेस होता है। कैसा होता है? यूनिट लेस। कैसी क्वांटिटी? तो आप बोलोगे सर स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी? स्केलर, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, तो सर ये यूनिट लेस है, क्या है? यूनिट लेस। अच्छा, बात करते हैं तो इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, आपको बोला गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33। तो देखिए इसके आगे मैंने कुछ यूनिट नहीं लिखा है ना, तो ये यूनिट लेस होता है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट c इनटू v। अगर सपोज करके आपसे पूछा जाए कि बेटा मेरा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो डायमंड में सपोज करके वो डायमंड में कितना हो गया? हाफ हो गया। आपको बोला गया कि स्पीड जो है डायमंड में वो हाफ हो गया, किससे? स्पीड ऑफ लाइट से। या डायमंड में आपसे बोल रहा है कि वो आपका डायमंड में सपोज करके मेरा जो आंसर सपोज कि वो आ रहा है 3/2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड आ रहा है। सपोज कर कि मेरा जो स्पीड जो आ रहा है वो आ रहा है 3/2 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड आ रहा है। आपको मान लो कोई डायमंड में, किसमें? डायमंड में okay, so you have to calculate refractive index, you have to calculate refractive index of diamond. So we know कि n equals to c by v, so from here v equals to c by n, and we know the speed of light in vacuum c, which is a standard data, you have to remember, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second. So by putting the values of c and we have to calculate n na, so by putting the value of c and v, c which is 3 into 10 raised to power 8 meter per second, and v is given to us 3/2 into 10 raised to power 8 meter per second. सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया, डायमंड, जरूरी नहीं कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना हो, मैंने तो एक एग्जांपल के लिए कंसीडर किया। मीटर पर सेकंड से मीटर पर सेकंड कैंसिल आउट हुआ, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ, 3/2 है बेटा, रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा? 3/1 into, मैं इसको रेसिप्रोकल दूंगा तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो कितना आया? 3 आया। हो सकता है आपके पास इन तीन में से कोई एक गिवन होगा। सी तो स्टैंडर्ड डेटा है, वो हम जानते हैं। इन दोनों में से कोई एक गिवन होगा तो हमें दूसरा क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। दूसरा क्या करना होगा? कैलकुलेट करना होगा। अच्छा सर, ये तो हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात की। अच्छा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर लेते। किसकी? रिलेटिव की। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करके मैं बात करता हूं कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, विद रिस्पेक्ट टू 1, तो ये लो। अगर मैं बात करूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, सो जिसके रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हो वो क्या होना चाहिए? डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो इसको आप बोलते हैं बेटा n जो है 2 और 1, ऐसा बोलते हैं इसको। और इसको ऐसा भी नोटेशन मिलेगा n 2 1, है ना। हो सकता है आपका 1 जो है ऊपर हो या नीचे हो। इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी विद मीडिया 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। सी मैं अगर नोटेशन अगर आप जनरली देखोगे तो इसको ऐसा बोला जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इट मींस n/1, n/1। कई बार हो सकता है कि आपको ऐसा लिखा हो कि 2 नीचे और ऊपर 1 लिखा हो, है ना। ये नोटेशन पे डिपेंड करता है। सो दिस इज, इसको आप ऐसा पढ़ोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इट मींस n2/n1। Okay, now we have to consider the next topic. Suppose a light ray travels from one media to another, then in which direction it will bend? In which direction it will bend? You will say that sir, there are two possible directions, away from normal or towards normal. Away from normal or towards normal. See, in which case it will bend towards normal or away from normal.
So right now we have to discuss if a light ray travels from one media to another, so in which direction it will bend? It will bend towards normal or away from normal? Case first. Okay, see, if light ray travels from a media 1 to second, the refractive index of media 1 is n1 and media 2 is n2. Suppose n1 is let n1 is smaller than n2. n1 is smaller than n2. See, अगर किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है, किसी मीडिया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस है तो उसको हम बोलेंगे रेयरर. सो अगर n1 आपका बेटा n2 बड़ा है, n1 छोटा है, इट मींस हम बोलेंगे कि n1 जो है वो कैसा है? रेयरर मीडिया. ओके, n2 के करस्पॉन्डिंग जो मीडिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? n1 के रेस्पेक्ट में n2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बड़ा है. इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 इज ग्रेटर देन n1, सो वी विल से n2 मीडिया, द मीडिया सेकंड इज डेंसर एज कंपेयर टू n1. सो n2 विल एक्ट एज डेंसर मीडिया. Okay, so when a light ray travels from rarer media to denser media, from rarer media to rare media to denser media. Okay, when a light ray travels from rarer media to denser media. See, suppose this is the direction of initial incident ray. Incident light ray. This is the normal over here, and we know this is the direction of initial incident ray. This is the direction of initial incident ray. Suppose this is the angle I. Okay, the angle of incidence is denoted by I. We know this is the direction of initial incident ray. This light ray, initial incident ray light, when passes through one media to another, it may bend like this or like this. It means it may bend towards normal or away from normal. How we will predict? How we can say that it will bend towards normal or away from normal? So for that particular, we have to calculate. We have to calculate mathematically by using second law. अच्छा, using Snell's law. We know by using Snell's law, sin I by sin R. सपोज R जो है बेटा वो रिफ्रैक्शन का एंगल है, वो कहाँ हो सकता है? सपोज R ये भी हो सकता है और सपोज R ये वाला भी हो सकता है ना. तो R कितना होगा उसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना. तो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R, एंड वी नो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ sin I by sin R should be equals to n2 by n1. अच्छा, मैं थोड़ा सा बात करता हूँ कि बेटा आपको पता है कि n2 और n1 में से हमने कंसिडर क्या किया है कि n1 is rarer media whereas n2 is denser media. It means the refractive index of media, denser media, is higher than rarer. Okay, so n2 is greater than, and we know n2 is greater than n1. So sin I by sin R is greater than 1. See, if n2 is greater than n1, so we will get n2 by n1 is greater than 1. Okay, so by using sin I should be greater than equals to sin R. And we know in trigonometric functions, if sin theta 1 is greater than sin theta 2, then theta 1 is also greater than theta 2. See, अगर साइन का फंक्शन बड़ा है तो बेटा उसका वैल्यू भी बड़ा होता है. कब तक? अप टू थीटा इक्वल्स टू 90. बात करते हैं 90 तक के, क्योंकि आपके सिलेबस में बेटा जो एंगल होगा वो 90 से बड़ा एंगल नहीं देगा और यहाँ पॉसिबल भी नहीं है ना. तो अगर sin थीटा 1 बड़ा है sin थीटा 2 से, तो थीटा 1 भी थीटा 2 से बड़ा है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका कंक्लूजन जो आएगा बेटा, इसका कंक्लूजन आ रहा है कि यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि I जो है, एंगल I शुड बी ग्रेटर देन एंगल R. मतलब R जो है वो I से छोटा होना चाहिए. अच्छा, R कब छोटा हो सकता है बेटा? ये तो सिमिलर टू I है. अब इससे R छोटा होना चाहिए, it means it will bend towards normal. So this is the angle R.
ठीक है, आपको क्या मिला कि we know sin I by sin R equals to n2 by n1 and according to our concept we know that the refractive index of media 2 is greater than 1. So if we are going to divide n2 by 1 then we will get a value which is greater than 1 which is greater than 1. Okay, so sin I by sin R greater than 1, so sin I क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो sin I is greater than sin R. So we know if sin का फंक्शन बड़ा है तो बेटा उसका एंगल भी बड़ा होगा. It means if sin I is greater than sin R then angle I is always greater than R. Angle I is always greater than R. It means आपको कंसेप्ट क्या पता चला? कंसेप्ट ये पता लगा कि सर हमारा लाइट रे जो है वो रेयरर से डेंसर में, रेयरर मीडिया से डेंसर मीडिया में ट्रेवल करेगा तो इट विल बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल, विल बैंड टुवर्ड्स. See, when a light ray travels from rarer media to denser media, then it will bend towards normal. Then it will bend. देखो ये तो इनिशियल डायरेक्शन थी, तो देखो किधर बैंड होगी, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी ना रिफ्लेक्टेड रे. सो ये किधर बैंड हुई, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हुआ. तो ये क्या हो गया बेटा, आपका जो आपका लाइट रे है वो रेयर टू डेंसर मीडिया में ट्रेवल करेगा तो इट विल बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल. अच्छा सर, हम बात करते हैं इसी केस को अगर मैं अपोजिट कंसीडर करूं, इसी केस को अपोजिट कंसीडर करूं, केस ये बना दूं कि इफ अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इफ अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. See the another case in this particular concept, if a light ray travels from denser media to, case second, if light ray travels from denser to rarer media, इट मीन्स अगर मैं मान लो कि बेटा मैंने ये कंसिडर किया तो ये n1 है और ये n2 है, ठीक है. अच्छा, डेंसर बोला, डेंसर से रेयर, इट मींस ये अगर मेरा इंसिडेंट रे है, इट मींस n1 इज ग्रेटर देन n2, ये कंसीडर किया ना मैंने. अच्छा, तो ये इंसिडेंट रे है. अब सपोज कर कि वही ये इनिशियल डायरेक्शन है इंसिडेंट की, मुझे नहीं पता कि r क्या होगा, वी डोंट नो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ r इज ग्रेटर देन और लेस देन i. बाय यूजिंग स्नेल्स लॉ वी नो sin i by sin r equals to n2 by n1, but n1 is greater than n2, so we will get n1 is greater than n2, so we will get n2 by n1 is less than 1. See बेटा, अगर आपका डिनोमिनेटर बड़ा है तो we will get the value less than 1, so by sin I by sin r is also less than 1, and by this we can say sin I is less than sin I is less than sin r, so angle I is less than angle r. तो इस केस में क्या हुआ बेटा कि आपका लाइट रे जो है वो रेयरर से डेंसर में जा रहा था तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो रहा था, जहां अपने को r बड़ा मिल रहा था, छोटा मिल रहा था. बट यहाँ क्या है, व्हेन अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडिया टू रेयरर, इट मींस आपका ये डेंसर है किसके कंपेयर में, सेकंड मीडिया के कंपेयर में, तो ये आपका एंगल जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए. एंगल क्या होना चाहिए, बड़ा. अच्छा, r बड़ा कब होगा, I से, जब ये ऐसा ट्रेवल करे. कैसा, तो देखिए r जो एंगल है वो बढ़ गया, किससे, I से. सो व्हेन अ लाइट रे, इफ अ लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडिया टू रेयरर मीडिया, it will bend away from normal. ओके, इतना आपको पढ़ना है बेटा. नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू.